Good morning, students. Today we will continue our fourth lesson, that is World of Plants. In the last video we had seen adaptation in plants. ठीक है, there are two major groups, terrestrial plants and aquatic plants. In the terrestrial plants, in last lecture we had seen plants on mountains and hills and plants in desert. Mountains and hills में बहुत सारी बारिश होती है, वहाँ पे स्नो आता है, तो इसीलिए वो जो प्लांट्स होते हैं वो कोन शेप के होते हैं और बहुत लंबे होते हैं. ठीक है, और उनका जो लीव्स होता है दे हैव waxy coating. ठीक है, so the snow slides off easily. And in the plants in the deserts, the example is the cactus. ठीक है, तो उसमें जो leaves है उनका modification किस में होता है? spines में होता है, to reduce the loss of water. ठीक है, and the examples of desert plants are cacti, babul, kikar and dead plant. Now the next modification is the next type of plant is aquatic plant. Aquatic plants adapt to the less sunlight, water and air. पानी में ज्यादा sunlight मिलता है क्या? नहीं. Water and air. There are different types of aquatic plants that float, remain fixed or grow underground. देखो, वाटर में भी अलग अलग टाइप के प्लांट होते हैं. दैट फ्लोट, कुछ प्लांट्स फ्लोट होते हैं, कुछ प्लांट रिमेन फिक्स्ड, वाटर में फिक्स्ड होते हैं, और ग्रो अंडर वाटर, कुछ प्लांट्स अंडर वाटर ग्रो होते हैं, मीन्स वाटर में ही वो रहते हैं. नाउ फर्स्ट, फ्लोटिंग प्लांट्स. प्लांट्स दैट फ्लोट ऑन वाटर आर कॉल्ड फ्लोटिंग प्लांट्स. ब्रैकेट इट. प्लांट्स दैट ग्रो ऑन वाटर, that called as a floating plants. Water hyacinth, duckweed and water lettuce are floating plants. Which are the floating plants? Water hyacinth, duckweed and water lettuce. Hyacinth is a flower plant. Okay, the plants can float on water because they have lightweight bodies and spongy stems. How can they float on the water? Because they have a light weight and a spongy stem. लाइट वेट होता है, इसीलिए वो वाटर में फ्लोट कर सकते हैं. सी वाटर लेटस, दिस इज द एग्जांपल ऑफ फ्लोटिंग प्लांट. देन फिक्स्ड प्लांट, जो प्लांट पानी में फिक्स्ड होते हैं. द रूट्स ऑफ अ प्लांट्स लाइक वाटर लिली एंड लोटस आर फिक्स्ड टू द बॉटम ऑफ अ वाटर बॉडी. ये फिक्स्ड होते हैं, पानी के ऊपर दिखते हैं वो, बट पानी के अंदर वो फिक्स होते है. उनका रूट जो है बहुत नीचे तक वो जाता है. विच आर देम? वाटर लिली एंड लोटस. दीज आर कॉल्ड एज अ फिक्स्ड प्लांट्स. दीज प्लांट्स हैव होलो एंड लाइटवेट स्टेम्स दैट हेल्प the leaves and flowers float on the surface of water. Because they have a hollow and lightweight, so they can float on water, but they are fixed in the water. ठीक है, these plants have a waxy coating on the surface of other leaves. Just like mountain plants हमने देखे जो grow on the mountain, they also have the waxy coating. Just like the plants which are in the water, they also have the waxy coating of their leaves. This coating repels water and prevent the leaves from rotting. देखो, ज्यादा पानी में कौन सी भी चीज रखो वो रोट हो जाती है, इसीलिए ज्यादा पानी में जो लीफ रहेंगे तो वो भी रोट हो जाएंगे. बट if they have a waxy coating, the water is get repel out from the surface of the leaves. ठीक है, तो इसलिए वो prevent the leaves from the rotting. They have stomata only on the upper surface of the leaves. क्योंकि नीचे से क्या होता है, वो पानी में होते हैं, लेकिन ऊपर का जो है पानी निकल जाता है. The leaves to perform photosynthesis. तो they have stomata only on the upper surface of the leaves. तो स्टोमेटा भी कहाँ होते हैं? उनके अपर सरफेस में. स्टोमेटा मीन्स स्मॉल पोर्स, स्मॉल होल्स ऑन द लीव्स, सरफेस ऑफ द लीव्स. दीज हेल्प द लीव्स टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के लिए लीव्स की जरूरत है कि नहीं, तो इसीलिए वो अपर सरफेस पर होते हैं. नाउ विल सी अंडर वाटर प्लांट्स. दीज प्लांट्स ऑलवेज ग्रो एंड रिमेन अंडर वाटर. ऑलवेज ग्रो एंड रिमेन इन अंडर वाटर. Tape grass and pondweed are the few examples of underwater plants. They have long, thin, narrow leaves like ribbons. They grow either in clusters or in a
bunches. Long, thin, narrow leaves होते हैं उनके ribbons like they are in cluster or in a bunches. Their leaves do not have stomata. उनकी leaves को stomata नहीं होता underwater plants. Carbon dioxide is absorbed and oxygen is released from their entire surface. जो भी surface है उनका पूरा है surface से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन वो क्या करते हैं रिलीज करते हैं. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट 45 पेज नंबर में देखो फॉरेस्ट अवर नेचुरल रिसोर्स. फॉरेस्ट इज अवर नेचुरल रिसोर्स. लेकिन देखो फॉरेस्ट कम हो रहे हैं और जो फॉरेस्ट में रहने वाले जो एनिमल्स हैं, ठीक है, वो तो शहर में आ रहे हैं, तो इसीलिए उनको फॉरेस्ट होना जरूरी है. फॉरेस्ट आर एन इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स फॉर अस. दे आर इसेंशियल फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स. फॉरेस्ट आर अ होम फॉर एनिमल्स एंड बर्ड्स. यस, दे आर प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन. जहाँ पे ज्यादा फॉरेस्ट होता है ना, वहाँ पे बारिश भी ज्यादा आती है, तो फूड भी वहां से ही हम लेते हैं. प्लांट से हमें फूड लेना पड़ता है, पता है हमें, और ऑक्सीजन भी प्लांट से ही हमें मिलता है. We also obtain a variety of products such as timber, wax, medicine, natural dyes, etc. from the forest. ये जो सब है प्लांट से हमें मिलता है. Moreover, the roots of the trees bind the soil together and prevent soil erosion. क्या होता है पता है क्या? ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स जहाँ पे होते हैं वहाँ पे बहुत सारे रूट्स भी होते हैं. तो रूट्स क्या करते हैं, सॉइल को होल्ड करके रखते हैं, तो सॉइल एरोजन वहाँ पे बहुत कम होता है या फिर प्रिवेंट होता है, नहीं होता. फॉरेस्ट ऑल्सो हेल्प इन क्लीनिंग पॉल्यूटेड एयर. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट फॉरेस्ट आर सेव्ड. ठीक है, फॉरेस्ट के कितने इम्पोर्टेंस है हमारे लिए. इट प्रिवेंट द सॉइल एरोजन, इट help to cleaning the polluted air, it gives us a wax, medicine, natural dyes, etc. ठीक है. There have been many movements in the past to protect trees and forest. Trees को protect करने के लिए forest पहले क्या करते थे, जंगल में जाते थे और लकड़ियाँ तोड़ते थे, लेकिन अब वो ना तोड़े इसीलिए कुछ movements की गई. One of the most important ones was the चिपको movement. देखो चिपको movement क्या है. The name of the movement comes from Hindi word that is चिपको, which means to stick or to hug. चिपक के रहना या फिर उसे hug करके रखना. In the 1970s, in the Garhwal Himalayan region located in the state we know today as Uttarakhand, women stopped trees from being कट डाउन बाय हगिंग देम. क्या करती थी वुमन, वो कट करते थे ना लोग, तो ये क्या करती थी, हग करके रखती थी झाड़ को. टू ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लीडर्स ऑफ द चिपको मूवमेंट्स आर सुंदरलाल बहुगुणा एंड चंदी प्रसाद भट्ट. देखो ये जो चिपको मूवमेंट के लीडर्स थे दो, सुंदरलाल बहुगुणा एंड चंदी प्रसाद भट्ट, ये लीडर्स थे. कौन सी भी चीज हो हमें करनी हो तो हमें कोई ना कोई लीडर चाहिए कि नहीं. तो ये चिपको मूवमेंट के लिए दो लीडर्स थे, उनका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा एंड चंदी प्रसाद भट्ट. दिस मूवमेंट वाज सक्सेसफुल इन प्रिवेंटिंग द डिस्ट्रक्शंस ऑफ द ट्रीज एंड फॉरेस्ट इन द हिल्स. इससे क्या हुआ, बहुत से लोग मतलब फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्शंस ऑफ ट्रीज ये कम हुआ, मतलब झाड़ तोड़ना कम हो गया. ठीक है. Apart from such movements, many other steps are being taken by the government as well as various organizations to save forest. अब बहुत सारे organizations है forest को save करने के लिए. अब लकड़ी तोड़ना मना है. Steps undertaken to conserve forest. कौन से steps किए गए forest को conserve करने के लिए? Planting trees on a large scale, planting saplings for every tree that is cut down, reducing the cutting down of trees in the forest for growing crops and building highways, keeping forest fires in check, passing protective laws such as the Forest Conservation Act of 1980, establishing more wildlife sanctuaries and national parks. These are the steps undertaken to conserve the forest. Okay, now we will stop here. After the listening video you have to read the whole lesson. ठीक है, और जो टॉपिक्स दिए वो आपको लर्न करना है पॉइंट्स. देन यू हैव टू राइट दिस ग्लोसरी ऑल्सो. ठीक है, नाउ वी विल स्टॉप हियर.